Hello guys. Hi. How are you? Good. So H Maths Institute आप सब लोगों का स्वागत करता है. We welcome you all. ओके, हमारी फैमिली में आपका स्वागत है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन है, यहाँ क्या कर रहा है. Why is he here? Don't worry. Here we bring something special for all the aspirants who are preparing for CDS, NDA, AFCAT, Airforce X group, Airforce Y group. उन सब के लिए हम ला रहे हैं समथिंग स्पेशल. हमारे पास उनके लिए बहुत खास है. सो उन खास चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए. प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो टिल एंड सो एज टू come across all the offers, all the courses we are rolling out. First of all the aspirants, do you want to overcome your pain points? We know that while preparing, many of you must be facing some doubts, some difficulties. जैसे कभी किसी को मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी किसी को करंट अफेयर्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि व्हाट इज द सोर्स, हमें विच सोर्स शुड वी फॉलो, है ना. ये सारी चीज़ें होती है. साइंस में लोगों को प्रॉब्लम होती है ना. मस्ट बी फेसिंग कि हाउ डू आई स्टडी फिजिक्स, हाउ डू आई स्टडी केमिस्ट्री, हाउ डू आई स्टडी बायोलॉजी. वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, lot of subjects are there. We have to study all those subjects, but difficulties, we talk of subjects, syllabus and all. Do we ever talk of pain points, difficulties which you face in those exams, those subjects? We will discuss. Let's be with here. So let's move ahead. Just discuss your difficulties with us so as to achieve your dreams at 2x speed. Now, अब you must be thinking, how do we solve problems? Pain points तो हमारे बहुत हैं, लेकिन हम solve कैसे होगा वो सब? Don't worry, we will have solution for everything you face, right? So, सबसे पहली चीज हम आपके लिए ये solve करने के लिए क्या क्या methodologies यूज में कर रहे हैं. What all methodologies will be using to solve your doubts, to solve your difficulties, solve your pain points, everything, so as to make your learning very effective, right? So we bring to you first structured study plan, right? Many of the students, they don't know how to study, what to study, at which time, what should we study. So we'll solve their problem. Don't worry, be with us. We are bringing structured study plan so that you'll be beforehand ready in your mind that which video is coming on which date at what time, है ना. सो आपको ये क्लियर रहेगा कि इस सब्जेक्ट का इस दिन ये वीडियो आने वाला है ना. तो आपको ये क्लियर रहेगा कि अच्छा 1 month डाउन द लाइन वेयर आई विल बी, you will be aware of that. So awareness is the very important thing in your preparation. We are solving that. Second is that we are bringing recorded videos for you with attached PDFs, in the sense that whatever you are going to study, the content of that video will also be provided in the form of a PDF, so that you can have a look at that again as and when required. Third thing, we bring you mathematics through animation. Many students, they face problem in mathematics. So as I told you that we are bringing mathematics in front of you using animations. इससे you will be able to correlate mathematics with the outside world. You will be able to know its importance. That is what it is. Then we are giving you question bank PDFs. So first आपने वीडियो देख लिया. Second, then the soft copy of that content of that video is available with you. Third thing is that how do you practice? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. We will provide the question bank PDF for the same video, है ना. अगर आपने टॉपिक पढ़ा रिलेशंस, ठीक है, तो रिलेशंस के उसी वीडियो के साथ PDF अटैच्ड होगा. PDF will be attached. Then second thing is that उसका question bank will also be there, right? So you need not worry. All in one approach we are coming up with. Then comes very important. Every fortnight we will have real time exam. So that may be in the form of a Google form, कि हम आपको Google फॉर्म सेंड कर दें बिफोर हैंड,
और वो पर्टिकुलर टाइम पे खुलेगा, जो कि हम आपको टाइम बता देंगे, इस टाइम पे खुलेगा, इस टाइम पे क्लोज हो जाएगा, टाइम लिमिट सेट होगा। सेकंड इज दैट वी कैन कम लाइव, लाइव के थ्रू भी हम कर सकते हैं, लाइव आके फिर वहीं पे डिस्कस करें, आई विल गिव यू क्वेश्चन, उसका टाइम होगा, देन यू हैव टू आंसर विद इन दैट टाइम, फिर स्लाइड चेंज हो जाएगा पीपीटी की तरह, है ना। सो हर 15th डे पे हम टेस्ट करेंगे सो दैट वी कैन गेट टू नो कि हमारा इवेल्युएशन हो सके हर पॉइंट इन टाइम के कि वेयर आर वी, है ना, वेयर डू वी स्टैंड, ये चीज़ वेरी क्लियर होनी चाहिए आपको। देन कम्स ऑन डिमांड डाउट सेशंस। नाउ यू नो दैट यू हैव seen the video, you have practiced questions. By now, when you are aware of that topic, you must be facing some doubts in those videos, in those questions. So we are here for you. I am providing you in the description box a link of our Telegram channel. You can connect with us in that group. Post your doubts there. We will analyze the data. Suppose that आपने doubts post किए, अगर हमें 100 में से 30 लोगों का मिलता है कि रिलेशंस के लिए आ रहा है, 20 लोगों का मिलता है करंट अफेयर में कुछ आ रहा है ना, 10 लोगों का और कुछ मिलता है, तो व्हाट विल डू, जो मेजोरिटी वाला होगा उसको ऑन डिमांड रखेंगे कि हम उसको अगले दिन ही शेड्यूल कर लेंगे और वहाँ पे उसको पढ़ेंगे। वी विल स्टडी दैट, वी विल शेड्यूल दैट बिफोर एंड वी विल नेक्स्ट डे वी विल solve your doubts in that particular video. That will be live streaming, right? Then comes SSB experience sessions, है ना। We will bring dignified faculties on our platform, जो काफ़ी है ना फोर्सेस से रिटायर्ड हैं या फिर जो recommended candidates, will interview them and will share their experiences with all the aspirants out there. और बहुत लोग कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है काफ़ी, तो हम भी करेंगे, ठीक। और सिंस आई माई सेल्फ हैव बीन टू SSBs 9 times, सो मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस है। साइकोलॉजी एंड ऑल दिस थिंग्स आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इट विथ यू बिकॉज आई एम नो वन, ओके। जो मेरा पॉइंट होगा फैक्ट से जो रिलेटेड चीज़ें होंगी आई विल डिस्कस दोस थिंग्स, राइट। देन कम्स इम्पोर्टेंट, ये जो टेस्ट ले रहे हैं ऐसे ही नहीं ले रहे हैं, वी हैव समथिंग फॉर यू, विल गिव यू प्राइजेज ऑल्सो। जो फर्स्ट 3 रैंकर्स होंगे उनको प्राइजेज भी मिलेंगे, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ सम गिफ्ट्स, है ना। वाउचर्स वगैरह हम नहीं रखते, वो मुझे आई माई सेल्फ डोंट लाइक वाउचर्स, कोई फायदा नहीं है। सो विल हैव सम गिफ्ट्स, आपको जहाँ भी आपका घर है आई विल ऑर्डर सम गिफ्ट्स फॉर यू देयर, आपके एड्रेस पे पहुँच जाएगा और विल गिव यू सम मनी एंड ऑल दिस। फर्स्ट 3 रैंकर्स के लिए ऐसा होगा, ठीक है। सो दीज आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ आवर कोर्सेज, राइट। सो हाउ डू we solve our problems, you are aware of that. So why do we choose you? This question must be, you know, by now revolving in your mind. Don't worry, you must choose us because first thing is that आपको specifications तो पता ही है, 24/7 आप टेलीग्राम पे अपने डाउट्स पोस्ट करिए। अगर आप कोई क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको नहीं आ रहा, आप वहाँ डालिए, वी विल रेस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन। डाउट सेशंस तो रखेंगे ही रखेंगे, डाउट सेशंस तो रखने ही हैं, उसके अलावा भी आपको छोटे मोटे डाउट्स आता है, हाँ पोस्ट कर दीजिए, वी विल सोल्व योर डाउट्स देयर ओनली। और हम नहीं तो जो और भी बच्चे हैं ना, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, तो वो बच्चे भी सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पे ही डिपेंड है, हम भी करेंगे बच्चे भी करें, हम है ना, वी विल कोऑपरेट, विल मूव इन अ वेरी कोऑपरेटिव मैनर, कि हमें ना एक आपस में एक मेल जोल रहे, ठीक है। देन कम्स अवेलेबिलिटी ऑफ वीडियो, जो हैं ये सब कुछ हम जितना भी ये कर रहे हैं अभी के लिए वी आर डूइंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ कम्स इंट्रोडक्शन ऑफ फैकल्टी, कि हमारे पास है कौन कौन, है ना। सो हियर फर्स्ट वन इज झूमर मैम, मैं खुद झूमर इज आई माई सेल्फ आई एम झूमर। सो मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको ये फील होना चाहिए कि आप हर ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है ना, we have some experience, that's why we are teaching. I myself qualified NDA written examination 3 times, CDS written examination 1 time, उसका भी मेरा SSB है, अभी जो पेंडेमिक की वजह से उसका डेट नहीं आया OT के लिए। Then AFCAT, I qualified AFCAT 3 times, so इनको मिला के ये हो गया 7 times, 2 times और भी मैंने NCC के SSBs दिए हैं, कोस्ट गार्ड के दिए हैं, तो ऐसा करके मेरा 9 SSBs अभी तक फेस किया, जहाँ अभी मेरा रिकमेंडेशन नहीं हुआ, होपिंग कि आगे हो जाए, ठीक है। सो सेकंड थिंग इज दैट कि आई एम सीटेड क्वालिफाइड, ठीक है। जो सीटेड टीचिंग का एग्जाम होता है ना, आई क्वालिफाइड दैट एग्जाम।
देन जो आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर की जो वैकेंसीज निकलती हैं, सो आई हैव क्वालिफाइड टीजीटी टीचर एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होता है, आई हैव क्वालिफाइड दैट, बट आई यू नो कि अभी उनके इंटरव्यूज वगैरह अभी जब भी होंगे, उनका स्कोर कार्ड काफ़ी टाइम तक वैलिड रहता है, विल सी, लेकिन अभी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उस चीज़ में, बट स्टिल आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। देन मेरा जो IIT-JEM रैंक का है वो 731 मेरा रैंक है ऑल इंडिया, मैंने अचीव किया था 2018 में। आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई अपियर्ड फॉर दिस एग्जाम IIT-JEM सो एज टू परस्यू माई मास्टर्स फ्रॉम एनी ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, है ना। स्कूलिंग के बारे में ऐसा है कि आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, ठीक है। देन मेरा ग्रेजुएशन हुआ है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये NCERT के इंडिया में 5 ही कॉलेजेज है, ये जैसे ना हम बोलते हैं ना कि IITs वगैरह हैं, ऐसे एजुकेशन की फील्ड में ये IIT है एक तरीके से ना। वहाँ से आई हैव डन माई ग्रेजुएशन BSc B.Ed, और सब्जेक्ट्स थे मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स प्लस एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि हाउ डू वी टीच मैथमेटिक्स, हाउ डू वी टीच केमिस्ट्री एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब कुछ वहाँ हमने पढ़ा है, BSc B.Ed में ये सब पढ़ाया जाता है। देन आई हैव डन इंटर्नशिप्स ऑल्सो, सो आई हैव दैट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, राइट। दिस इज ऑल अबाउट मी। नेक्स्ट कम्स देवेश, ओके। सो देवेश इज ऑल्सो माई बैचमेट, सो ही हैज़ डन हिज स्कूलिंग फ्रॉम सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ itself, एंड उसका जो BSc हुआ है JNU से, हैज़ डन हिज BSc फ्रॉम JNU इन CBZ केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जूलॉजी, सो ही विल टीच यू साइंस एंड करंट अफेयर्स। सो खास चीज़ जो देवेश के बारे में इज दैट ही इज अ पब्लिक स्पीकर, इज अ पब्लिक मोटिवेटर, है ना। सो एक्चुअली ही लुक्स आफ्टर द मेंटल एस्पेक्ट्स, है ना, कि अगर किसी को थोड़ा मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जैसे स्ट्रेस वगैरह, दिस हैज इंक्रीज अ लॉट दीज डेज। So we have solution that we will take कुंतल on our platform, ये आपको वहाँ पे आपको बताएंगे कि मेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। हम शुरू किया रिमेनिंग फैकल्टीज़ को हम अदर सब्जेक्ट्स के लिए अभी रिक्रूट करेंगे। जैसे मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा, आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा, जैसे जिनको रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ाऊँगा एंड देन मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे हमेशा। और जो कुंतल है आपको साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। दिस इज अबाउट अस एज ऑफ नाउ, वी आर रिक्रूटिंग फैकल्टीज फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, सो डोंट वरी। एंड अभी तक मुझे लग रहा है कि आपको कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। एक्चुअली वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स टू हेल्प यू आउट, ओके। ये अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग हु आर वी। एक्चुअली मेरा इस फील्ड से रिलेटेड थोड़ा डिफेंस से रिलेटेड मेरा काफ़ी नाता रहा है ना। आई हैव बीन कनेक्टेड टू दिस फॉर द लास्ट 7 years और सो, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 2013 टू नाउ इट्स 2020, है ना, 2020। सो अभी तक आई हैव बीन कनेक्टेड टू ऑल दीज थिंग्स। फिर मैंने बहुत सारे है ना काफ़ी एग्जाम्स भी दिए, तो आई नो कि व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, हाउ शुड वी कवर द सिलेबस, ऑल दीज थिंग्स। सो आई विल शेयर ऑल दोज डिटेल्स विथ ऑल्सो अदर देन टीचिंग, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। नाउ विल सी कि अभी तक तो हमारे बारे में हो गया कि डेमो भी तो दे दीजिए आप, कि आप बस बोलते रहेंगे, आप डेमो भी दिखाइए कि व्हाई शुड वी बिलीव यू, कि आपकी टीचिंग कैसे होने वाली है। सो हियर इट इज, लेट्स सी एन एग्जांपल वेयर we are being asked to find out if the given function is 1 1 or not. So what is given is that there is a function f which is going from r to r, where r is a set of real numbers, you know that such that y equal to fx, where fx is equals to mod of x plus 2. अच्छा, now you must be thinking कि है क्या, we are not getting anything, don't worry, I'll make things easy for you. So let us break down into 3 things. First of all, what is modulus? What do you understand by modulus? Second, what is function? Third, what is 1 1? So we will go sequentially. So what is modulus? Let us pick this first. So modulus, you know that. Modulus is whatever the number you choose, whatever the number from a set of real numbers, whether it is a positive, negative or 0. The number, resultant number will always be either 0 or positive. कैसे? So mod of, there is a definition of mod of x, that mod of x is equal to x if x is greater than equal to 0, and this is minus x if x is less than 0. अच्छा, what is this? Okay, suppose you have a number 2, you have a number x equal to 2. So x equal to 2, क्या x जो 2 है, 2 क्या 0 से बड़ा है कि नहीं है? 2 is greater than 0. So what does it mean?
जो mod of x होगा वो क्या होगा, you can see that will be only x, so that will be only x, so only 2. okay, what अगर हम लें x equal to -2, if we take x equal to -2, then what will be the mod of x equal to -2? So mod of what will be this? Since now you know that -2 is less than 0, -2 is less than 0. So when this something, you know that when x is less than 0, the resultant is minus of x. So minus, what is x? -2. So what it is? 2. So what I said, so you have checked that आपने पहले फर्स्ट एक पॉजिटिव नंबर लिया x equal to 2, then you took a negative number x equal to -2. दोनों में जो रिजल्टेंट था वो पॉजिटिव था 2 के लिए और -2 के लिए जो रिजल्टेंट आया वो 2 ही आया. अच्छा, अगर क्या 0 हो तो if we say x equal to 0, then what will the resultant? Resultant will be 0. Why? What I said is that if x is greater than or equal to 0, resultant will be x. So since x equal to 0, the resultant will be only x. So what is the resultant? X. What is x? 0. So resultant will be 0. That's why I said you pick any real number, whether it is a positive or 0 or negative, resultant will be either 0 or positive. That is the meaning of modulus. So let's go back to function. What is function? This is very big question comes here. फंक्शन ये क्या है, ये तो समझ नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा. इस वे में क्या बताया जाता है? The thing is that only definition is taught, that in a very pure form. What is function? फंक्शन बता दिया जाएगा. फंक्शन इज ए रिलेशन. रिलेशन क्या होता है? एक एसोसिएशन है, एक संबंध है. कैसे? सपोज कर लिया मैं क्या हूँ, सन हूँ. किसका सन हूँ? मेरे पिता का. इसका मतलब क्या हो? आई एम सन ऑफ माई फादर. सो रिलेशन क्या है कि सपोज कर लिया x जो है, x क्या है यहाँ पे, वो फादर है, तो y क्या है? सन. सो रिलेशन क्या हुआ? y इज द सन ऑफ x एंड x इज द फादर ऑफ y. ये एक रिलेशन हुआ. अच्छा, इस रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे वो बताया जाता है कि अगर ये जैसे दो एलिमेंट है फादर और सन, ये किसी ना किसी दो सेट से आए हैं, दो डिफरेंट सेट से आए हैं. सो क्या बोलते हैं, जिन सेट से आए हैं उन सेट्स की अगर हम बात करें तो बोलते हैं कि अगर जो पहला जो सेट है जहां से हमारे पास फादर आ रहा है, अगर वहां से अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाएं, उस फर्स्ट जो सेट से अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाएं, उस एलिमेंट का हमें एक कोई इमेज मिल जाए, है ना, ये कि जिससे ये एसोसिएट कर रहा हो जो दूसरे सेट में जो एलिमेंट है, और जिससे एसोसिएट कर रहा हो क्या हो? यूनिक हो. क्या हो? यूनिक हो. तो हम उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे. ये तो पहली चीज. और फंक्शन के लिए दूसरी चीज क्या है कि जो भी जो सेट ए है ना, जहां से दूसरे सेट में जा रहा, वहां हर एलिमेंट का ना कोई इमेज होना जरूरी है. ये क्या यार, बहुत ही, दिस इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग, वी हैवंट गेट एनीथिंग. डोंट वरी. So suppose there are two elements x1 and x2. There is a domain A. Function from A to B. x1 and x2 दो एलिमेंट्स लिए, A से कोई भी दो एलिमेंट्स लिए. अगर मैं बोलूं x1 किसके बराबर हो? x2 के, तो जो fx1 आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए? fx2 के. ये क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास यहाँ इस सेट से मैंने दो एलिमेंट ले लिए, है ना, x1 इसका जो इमेज आया यहाँ पे, इमेज लिख दूं मैं जो फंक्शन के अंदर, वो सपोज कर लिया y1 आया और x2 का आया y2. अगर ये दोनों एलिमेंट सेम हो, क्या हो? सेम हो. इसका मतलब क्या हुआ? ये तो एक ही एलिमेंट हुआ, तो ये जो दोनों इमेज होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए. अगर ये सेम नहीं हो तो क्या हो जाएगा? ये इस टाइप का हो जाएगा, है ना, इस टाइप का हो जाएगा कि भाई ये एक ही एलिमेंट है एंड इट इज हैविंग टू इमेजेस. तो इसका मतलब क्या होगा? ये फंक्शन नहीं होगा. फंक्शन की पहली चीज तो यही है कि और जो भी एलिमेंट हो उसका एक यूनिक इमेज हो, लेकिन यहाँ तो यूनिक इमेज है ही नहीं, दो मिल रहा है. अच्छा, अभी भी स्टिल देयर इज यू नो प्रॉब्लम इन दिस. वी आर नॉट गेटिंग थिंग्स कंप्लीटली. डोंट वरी, आई हैव अ डिफरेंट वे. आई टीच इन माय वे. दिस वाज द ट्रेडिशनल वे. लेट्स माय वे इज दैट कि हमारे पास एक इनपुट है x. मैंने इस इनपुट को नाम दे दिया x. क्या नाम दिया मैंने इनपुट को मैंने नाम दिया x. ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे. सो इसको मैं रिलेट करता हूँ सबसे पहले कि आप देखते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो फार्म्स पे काम करते हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि
फसल के वक्त वो फर्टिलाइजर्स देते हैं, वो इरिगेशन करते हैं, टाइम टाइम पे केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ये सब कुछ देते हैं खेत में, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है, हमारे पास उसका आउटपुट आ जाता है, ठीक है, जिसको हम मार्केट में, मंडी में जिसको बोलते हैं, वी टेक इट देयर, है ना, एंड वी सेल इट। सो क्या हुआ, हमने इनपुट दिया, हमको आउटपुट मिला, है ना। सो आई जस्ट रिलेटेड दैट कि हमने इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट देने पे किसको दिया हमने, कि मैं बोलता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग जो फंक्शन है वो एक मशीन है, मशीन में हम कोई भी इनपुट देते हैं, हमें मशीन का आउटपुट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एफएक्स, इन द फॉर्म ऑफ एफएक्स। एक्स हमने इनपुट दिया, एफएक्स की फॉर्म में हमें आउटपुट मिल गया। तो व्हाट इज डिफरेंट हियर, अब मैं क्या बोलता हूँ कि जो इनपुट है ना, ये हमारा इनपुट, इस इनपुट की कुछ स्पेसिफिकेशंस है कि एक तो हमें हर इनपुट देना पड़ता है, ये जहाँ से भी हम इनपुट उठा रहे हैं ना, जिस भी चीज़ से, जिस भी सेट से हम ये इनपुट उठा रहे हैं, जिस भी सेट से, वहाँ से हमें ये एक जो है वो वेरिएबल है, हमें कुछ भी आना चाहिए, वो सारे के सारे वहाँ से आने चाहिए। इस जो फर्स्ट सेट है वहाँ से हम सारे इनपुट्स ले लेंगे, उनको इस मशीन में डाल देंगे और हमें विल गेट एन आउटपुट देयर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच इनपुट। सो व्हाट आई से इज दैट फॉर ईच इनपुट द आउटपुट इज यूनिक, output is unique for each input, output is unique, and there is an output corresponding to all the inputs. Let's see an example. Suppose A is equal to set of states of India, states of India, okay, yes, and what is B, B is equal to cities of India, this is a set of cities of India, okay. So I am defining one thing कि इसको हम फंक्शन से एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं कि ये फंक्शन कैसे होगा फंक्शन। सो इनपुट इज व्हाट, फ्रॉम इनपुट इज कमिंग फ्रॉम दिस सेट ए वेयर इनपुट में बी एनी स्टेट ऑफ इंडिया। सो आपको ये तो पता है कि हर स्टेट ऑफ इंडिया का कैपिटल जरूर है, ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज अ कैपिटल, दिस इज वेरी श्योर। पिक एनी स्टेट। सो इफ आई से राजस्थान, if I say Rajasthan, what is its capital? It has a capital, it's Jaipur, right? Is there, you just pause the video and think, is there any state which doesn't have capital? No, there is nothing like that. So it means from here there is a set where set of states of India, so all the states are having some capital. So B is the cities of India. So we know that Jaipur is a city, है ना, city. But I am defining a function, output is only capitals, Jaipur is a city, I am just taking only capitals. It means there is another subset, there is another subset of B, subset of B, which is a set of capitals of India, right? Capitals of India, right? यहाँ से आपको ये चीज़ समझ। अच्छा, मैं अब ये बता रहा था कि अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए। क्या चीज़ नोटिस करिए, मैंने बोला इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, ये तो आपको समझ आ गया, हर स्टेट का एक कैपिटल जरूर है, क्या वो यूनिक है कि नहीं? अच्छा, यस, थिंक, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक। अच्छा, राजस्थान, क्या राजस्थान की एक ही कैपिटल है या दो कैपिटल है? एज फार एज आई नो देयर इज ओनली वन कैपिटल, सो देयर इज ओनली वन कैपिटल फॉर ईच एंड एवरी स्टेट, है ना। दो स्टेट्स की कैपिटल सेम हो सकती है बट उल्टा नहीं हो सकता, है ना। टू और मोर स्टेट्स कैन हैव सेम कैपिटल बट वन स्टेट कैन नॉट हैव टू और मोर देन टू कैपिटल्स, यूनिक होगा, है ना। सो अब आपको फंक्शन समझ आ रहा है कि इनपुट, हर इनपुट लेना है, इस हर एक तो जो भी सेट पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, एक तो हर इनपुट लेना है, वो इनपुट मशीन में डालना, हमें आउटपुट मिलेगा, जो आउटपुट होना चाहिए दैट मस्ट बी यूनिक, है ना, यूनिक। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर फंक्शन। अब ये हो सकता है कि हमारे पास दो इनपुट्स हों, उनकी कैपिटल सेम हो, ये पॉसिबल है, ये फंक्शन में आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उल्टा नहीं होना चाहिए कि एक की दो चीज़ें हों, एक स्टेट की दो कैपिटल्स, ये नहीं होना चाहिए, वो चीज़ फंक्शन में नहीं आती। अब आपको थोड़ा समझ आएगा, यू मस्ट बी, नो, नाउ यू मस्ट हैव गेट द पॉइंट कि अच्छा फंक्शन है क्या, ओके। सो माई डेफिनेशन इज दिस, function is a machine which gives unique output corresponding to each input and none of the inputs is left over. This is my way of defining functions, okay. Now when you are aware of modulus function, then let's practice an example so that you can get to know
कि हमें फंक्शन समझ आया कि नहीं। अच्छा, आप ये जो फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक इफ इट इज अ गिवन इफ इट इज अ फंक्शन और नॉट। ओके, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक। अच्छा, अब देखो ये एक इनपुट था, आउटपुट ये आ रहा है, ये एफ के अंडर हो रहा है ना, सब कुछ एफ के अंडर हो रहा है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो पहली चीज़ तो क्या है, क्या सब इनपुट्स के आउटपुट्स हैं? हाँ है, पहले जो क्राइटेरिया है वो तो सेटिस्फाई है। दूसरा, क्या सारे इनपुट्स का यूनिक आउटपुट है? अच्छा, -2 का तो एक -2 है, और कुछ तो नहीं है। 0 का -10 और कुछ तो नहीं। हाँ, ये सेकंड चीज़ भी हमारे पास फुलफिल हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन है। नाउ सेकंड को देखिए आप, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक व्हाट इज अ फंक्शन और नॉट। ओके, सो -2 has an image of -12, 0 has an image as -12, 4 has an image as -10, 12 has an image as 2. Okay, so first criteria, सारे इनपुट्स की इमेज है। yes, none of the input is left over. cool, in this machine none of the input is left over. Second is that all the inputs must have unique output. okay, -2 का -12 के अलावा कोई और है? नहीं। 0 का -12 के अलावा और कोई है? नहीं। 4 का -10, 12। ओके, हाँ, सेकंड। सो बोथ आर फंक्शंस। सो व्हाट, अगर सेकंड को मैं थोड़ा अमेंड करूँ, मैं ये क्या करता हूँ, -2 और ये 0 है, मैं क्या करता हूँ, -2 का -12 भी है और 10 भी है, 0 का 10 भी है ना। सो नाउ टेल मी, बाकी ये 4 यहाँ तक का पार्ट सेम है। नाउ जस्ट टेल मी, नाउ -2 का -12 भी है, -2 का 10 भी है, क्या यूनिक है ये? नहीं है। अच्छा, अभी इस केस में फंक्शन नहीं है, तब आपको अब समझ आ होगा कि व्हाट इज फंक्शन। कूल, हियर इज अनदर एग्जांपल। सो आई वोंट टेल दिस, यू जस्ट प्रैक्टिस इट, पॉज द वीडियो एंड थिंक इफ f is a function or not, if g is a function or not. Now 1 we have to check, first study what is 1. Now traditional way of saying a function is said to be 1 or injective word, it says that if the images of distinct elements of A under F are distinct, then the function is said to be 1. Oh my god, what is this? Let me simplify it for you. It says that you have a set, we have seen that there is a set A. Now let's take the previous example, set of states of India, states of India, and B is the set of cities of India. Now what it says that if the images of the distinct element of A, so states, इसका जो state है, किसी भी state का image क्या था, कैपिटल था, है ना, कैपिटल था। What it says is that if two states are different, then their capitals has to be different. Okay, so if I have Rajasthan and MP, since these are two different states, so they cannot have same capitals. This is what, if this is the case, then we say that is 1. But अगर हम, if we see the same example, we see that Haryana and Punjab. Haryana and Punjab, what is the capital of Haryana and Punjab? Chandigarh, right? Chandigarh. If this is the case, then tell me, is it 1 or not? Pause the video and think. नहीं है. Why? Because this is an input, this is an input. For two different inputs, we have the same output. For two different inputs, we have the same output. But that is not the definition of 1, right? So this is not 1. What it says that if two states are different, then their capitals must be different, right? So mathematically देखते हैं कि we have if two distinct inputs, then the images are distinct, right? Then their images are distinct, and this is the reverse of this. You know that. You must have studied if P implies Q, इसका जो equivalent होता है वो होता है not of Q implies not of P, है ना। ये जो चीज़ है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है। आप अभी ये डेफिनेशन देखिए, वंस वी गेट प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन्स। एंड जो ये रिवर्स वाली जो डेफिनेशन है ना, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। वी जस्ट प्रोसीड इन दिस मैनर, वी कैन प्रोसीड इन दिस मैनर बट इट इज ईजी।
So we will see this while practicing examples. So this is as per the definition. Then what is my way of teaching the 1-1? Yes, here it is. Actually my way is that I follow graphical approach. There is a horizontal line test. If those who are aware of some mathematics, then they must be knowing there is a horizontal line test in this functions. So I just follow this because मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो functions हैं, अगर we draw the graph of each and every function, if we are able to feel it कि अच्छा कि ऐसा ग्राफ दिखता है, it looks as such, then we'll get a clear idea. Oh, this is how it works. So horizontal line test. Okay. So that यही नोट में यही लिखा है कि अगर फंक्शन का ग्राफ आपको पता हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से 1-1 फाइंड करना इजी सी बात है, और वो काफ़ी इफेक्टिव होता है कि एक्चुअली आपको समझ आता है कि ग्राफ से कैसे 1-1 और फंक्शंस को कैसे समझा जाता है. अभी हमको भी पता है कि हम किसी चीज़ को विजुअल से देखते हैं तो वो हमारे को लंबे टाइम तक याद रहती है, समझ भी अच्छी आती है. सो व्हाट्स हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट? सो मैथमेटिकली आपने क्या देखा, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देन y1 शुड नॉट बी इक्वल टू y2, कि अगर इनपुट्स इक्वल नहीं है तो आउटपुट्स भी उनके इक्वल नहीं होने चाहिए, यही था. सो हम इसी चीज़ को हम इसमें देखते हैं. तो मेरे को अगर बोलना है कि गिवन फंक्शन इज नॉट 1-1, इसका मतलब क्या, ये सेटिस्फाई होगा जब तो फंक्शन होगा. हम क्या प्रूव कर दें कि अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट स्टिल y1 इज इक्वल टू y2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि सपोज कर लिया कि हमारे पास एक कोई भी x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है और y1 इक्वल टू y2 है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस खींचते हैं, अगर आप कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस खींचते हैं, सपोज कि मैंने ये खींचा है एंड मैं सेज कि y इक्वल टू 2, ओके. सो इस पूरी लाइन पे y फिक्स्ड है ना. आप इस लाइन पे इधर से इधर चले जाइए, y की वैल्यू फिक्स्ड है 2 ही रहेगी, लेकिन x की वैल्यू इधर बढ़ रही है, इधर कम हो रही है, चेंज हो रही है. इट मीन्स इस लाइन पे आप ले लीजिए a, दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b, ओके. सो इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स, suppose that coordinates are x is -2, y is 2, and here x is 2 and y is again 2. It means x1 is not equal to x2, right? This is x1, this is x2, but still y1 is equal to y2. If this is the case, then the given function is not 1. It means क्या हुआ कि आप जो भी आपने ग्राफ ड्रॉ किया, आप उस ग्राफ पे y इक्वल टू ए कुछ भी हो सकता है, ये जो पॉइंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे, कोडोमेन से आएंगे. वहाँ से किसी को भी उठा के आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइंस ड्रॉ कीजिए. अगर गिवन ग्राफ को एग्जैक्टली या तो इंटरसेक्ट ही ना करे, इंटरसेक्ट करे तो एक ही पॉइंट पे करे. अगर इंटरसेक्ट वो 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे करती है, अगर वो इंटरसेक्ट 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे करती है वो लाइन, तो वो फंक्शन क्या नहीं होगा, 1-1 नहीं होगा. अच्छा, लेट्स हैव एन एग्जांपल. अब हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, हमें चेक करना था y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2, इसको चेक करना था कि ये 1-1 है क्या नहीं, है ना. सो इफेक्टिव वे विल बी टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, राइट. फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. सो y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2. अब 3 जो लाइंस ली गई हैं पैरेलल टू, ये जो फंक्शन था वो कहाँ से था, R से R, तो हमें यहाँ से कोडोमेन में से कोई भी पॉइंट्स उठा लो, है ना. सो मैंने पॉइंट्स लिए y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 6. अच्छा, अब देखिए y इक्वल टू -2, क्या ये कहीं भी इस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस ग्राफ को कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा. अच्छा, यहाँ y इक्वल टू 2 एक पॉइंट पे कर रहा है, एक पॉइंट पे y यहाँ 2 होगा, इसका मतलब x की जो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, सीधी सी बात है ना. सो 0,2 पे इस ग्राफ को इंटरसेक्ट, तो एग्जैक्टली 1 पे. मैंने क्या बोला, एज लॉन्ग एज आइदर इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, तब तो ठीक है. उसके बाद वाला जो केस है ना, देन इट डिससेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. सो हियर दिस लाइन y इक्वल टू 6, so it intersects at 2 points. One is -4,6, you can see. Another one is 4,6. So what I said, it is, so yeah, check. This is x1 -4, this is x2 4,
है ना, दीज आर द 2 पॉइंट्स बट स्टिल दे हैव द सेम इमेज एज 6. व्हाट आई सेड, फंक्शन तो है लेकिन 1 1 नहीं है. 1 1 के लिए क्या, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मस्ट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस बट दे हैव द सेम इमेज हियर, सो इट्स नॉट ए 1 1. इसको थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं, है ना. नाउ हियर आई एम यूजिंग जियोजेब्रा. जियोजेब्रा एक मैथमेटिकल टूल है जो कि एक अच्छा टूल है ना. आई एम यूजिंग जियोजेब्रा हियर. नाउ व्हाट यू कैन सी इज दैट हियर दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट सी, सेम चीज़ है. मैं क्या, ये जो लाइन है ना, ये एक तरीके से ये जो लाइन है ये मूव कर सकते हैं ना, ऊपर मूव कर लो इसको या नीचे मूव कर लो. यही वो लाइन, मैंने क्या बोला कि y जो है 4 डोमेन में से कोई भी पॉइंट उठाओ, तो ये वेरिएबल पॉइंट्स है ना, मैं कुछ भी उठा रहा हूँ, कुछ भी उठा. जब तक आप y की वैल्यू -∞ से आ रहे हो, कहाँ तक आ रहे हो, y की वैल्यू 2 तक आ रहे हो, तब तक कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक. लेकिन आप y = 2 से अबव जाते हो, y = 3, y = 4, तो यहाँ प्रॉब्लम है. देखिए अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने लग गई है ना, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने लग गई है, इसलिए ये एक 1 1 फंक्शन नहीं है. तो अभी तक आपको समझ आया होगा कि फंक्शन और 1 1 एक्चुअली यहाँ से ना, ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, मॉडुलस क्या है, ग्राफिकली कैसे देखना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है क्या. एक्चुअली ये एक्चुअली दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग, जस्ट आई वांटेड टू टेल यू दैट ना. अभी ये डिटेल में पढ़ा नहीं है. फंक्शन को जब पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, एंजॉय इट लाइक एनीथिंग. इनफैक्ट व्हेन आई टीच ना, आई जस्ट फील इट, बहुत मजा आता है. एक्चुअली व्हेन यू ड्रॉ ग्राफ्स, यू विजुअलाइज थिंग्स, मैथमेटिक्स इज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. सो अभी एक एग्जांपल देखते हैं, अनदर एग्जांपल, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. कि ये जो क्वेश्चन है ना, कि हमें पूछा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 पावर 1000 इज डिवाइडेड बाय 7. ओ माय गॉड, हाउ टू सोल्व. So to do this, first of all, how we will solve 4 power 1000? First you have to solve that 4 power 3, 4 power 4. भाई 4 पावर 5 तक जाते जाते ही मेरे तो होश उड़ जाए मल्टीप्लाई करते करते. अब मेरे 4 पावर 1000 तक मल्टीप्लाई करूँ, देन आई डिवाइड इट बाय 7, रिजल्ट जो आएगा, एंड देन आई गेट द रिमाइंडर, दैट इज द आंसर. वेरी टीडियस प्रोसेस. So what is done here is that there are some methodologies which are being followed here. So first is method of cyclicity. Method of cyclicity क्या बोलता है ना, जो हमें क्वेश्चन था वो था 4 पावर 1000. क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ a पावर x की फॉर्म में, है ना. x जो वो पावर है x 1 2 3 4 5, और a जो है हमारा यहाँ पे फिक्स जो नंबर है ये 4 है ना, कोई दिक्कत नहीं. सो हैव ए लुक एट द टेबल. सो ये देखिए 4 पावर 4 मैंने किया तो ये हमारे पास क्या आया, 4 आया. डिवाइजर क्या है, 7, तो रिमाइंडर क्या आएगा. ये जो नेगेटिव पोर्शन है आप भूल जाए, इसका यूज आता है, मैं बताऊंगा जब मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि नेगेटिव हम क्यों पढ़ते हैं. नेगेटिव बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अभी के लिए हम पॉजिटिव पे ध्यान देते हैं. सो ये 4 आया है ना. 4 पावर 2, तो आप 16, 4 × 4 16, ठीक है. 16 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 2. व्हेन 4 क्यूब, so 4 cube, how you will do that? So you know that 4 square leaves a remainder of 2. So it is 4 cube can be written as 4 square dot 4. So 4 square leaves a remainder 2, and so 2 and 4 when divided by 7 leaves remainder 4. So 4 to 8. That's why I am multiplying. It becomes easy rather than 4 × 4 × 4 doing that. Just pick the remainder of the earlier power and multiply it by the that particular number. So 8 leaves me remainder 1. So same way you do this, 1 × 4 gives me 4, then 4 again 4, and this 4 power 4 × 4. So 4 power 4 gives me remainder of 4 multiplied by 4, 16. 7 जब डिवाइड करता है 16 को, रिमाइंडर इज 2. ओके. सिमिलरली इसको 4 पावर 6 को किया तो रिमाइंडर इज 1, 4 पावर 7 रिमाइंडर इज 4. अब यहाँ से यू कैन नोटिस अ पैटर्न. लेट मी चेंज द स्क्रीन. सो व्हाट वाज दैट, 4 पावर 4 जो था, रिमाइंडर जो आया हमारे पास 4 स्क्वायर में जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो 2, 4 क्यूब में जो हमारे पास रिमाइंडर आया 1, 4 पावर 4 में जो हमारे पास रिमाइंडर आया 4, 4 पावर 5 में हमारे पास रिमाइंडर आया 2, 4 पावर 6 में हमारे पास रिमाइंडर आया 1. सो मैं क्या करता हूँ, वो पावर्स लेता हूँ ना जिनमें रिमाइंडर 1 आ रहा है
है ना। मैं कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह आपको नहीं बताना, मैं प्रोसेस पे, आई जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस, बिकॉज मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट मगिंग अप द फॉर्मूलाज एंड देन सॉल्विंग, नो, मैथमेटिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड लेट्स लर्न इन दिस मैनर ओनली, राइट। सो 4 क्यूब इज 1, है ना, 4 पावर 6 इज 1, सो 4 पावर 9 विल ऑल्सो गिव मी 1, इट मीन्स वॉट, 4 पावर 3m, इसका जो रिमाइंडर आएगा 1 when divided by 7, 4 पावर 3m, m इज इक्वल टू m बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, m की वैल्यू 1 ली तो 4 क्यूब हो गया, 2 लिया तो 4 पावर 6 हो गया, m की वैल्यू 3 लिया तो 4 पावर 9 हो गया, इन सब में जो रिमाइंडर है 1 आ रहा है। सो 4 पावर 1000 था हमारे पास, है ना, 4 पावर 1000, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 पावर 999.4, है ना। अच्छा आप देखिए 4 पावर 999 है, वो तो इसी फॉर्म में है ना, 4 पावर 999 को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 4 पावर 3 इंटू 3, है ना, तो सेम फॉर्म में, इसका मतलब इसके लिए तो रिमाइंडर 1 आएगा 4 पावर 999 के लिए, और ये 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो अभी जब इसको किया 4 पावर 1000 को जो रिमाइंडर आया वो कितना आ गया, 4 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। सो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर इज 4, वेरी क्लियर, दिस इज मेथड ऑफ साइक्लिसिटी। अनदर मेथड में आई विल गिव यू सम important theorems, right? One is Euler's theorem, one is Fermat's theorem. मैं अभी आपको ये चीज़ I won't explain you all these things here. We will see these things when we discuss the chapter of number system for CDS batch, right? So what I want to say is that कि method of cyclicity जो है उससे कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए तो हम इन थ्योरम्स का यूज कर सकते हैं, और दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल थ्योरम्स, राइट। सो इनका इंपॉर्टेंस क्या है ना, लेट्स लुक एट द इंपॉर्टेंस। सो इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरम इज दैट जब भी हमें वो क्वेश्चंस आते हैं ना, कभी आपने देखा हो कि ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट्स डिजिट और द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस व्हेन इट इज एंड डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस एंड ऑल दीज क्वेश्चंस, व्हेन दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, सो इट मींस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। अच्छा मैं अगर 12 हूँ तो व्हाट इज डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज 2। हाउ, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, डिवाइड इट बाय 10 यू विल गेट डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, ऑब्वियस बात, पिक एनी नंबर, 999, व्हाट इज द यूनिट्स प्लेस डिजिट, डिवाइडेड बाय 10, व्हाट यू विल हैव, रिमाइंडर इज 9, जो रिमाइंडर आ रहा है इसका, जो रिमाइंडर आया तो वही उसका यूनिट्स प्लेस पे आएगा। अगर हंड्रेड्स पे करना है तो उसको 100 से डिवाइड कर दिए, रिमाइंडर ले लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो उसका हंड्रेड्स प्लेस पे डिजिट आएगा, सो ये एक्चुअली ना टॉपिक का नाम होता है मॉड्यूलर अर्थमेटिक। वी विल ये पढ़ते हैं हम बीएससी लेवल पे, लेकिन अभी 12th लेवल पे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ठीक है अभी के लिए, लेकिन मैं इसको ना सिंपल वे में समझाऊंगा। और जो सेकंड आता है ना, कभी कभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि a पावर जो x है डिवाइडेड बाई b, तो ये एक्चुअली इसका स्पेसिफिक केस यही तो है कि मैंने यूनिट्स प्लेस का मतलब क्या है, b मेरा क्या हो गया 10 हो गया, है ना, और हंड्रेड्स प्लेस की बात की तो b मेरा क्या हो गया 100 हो गया, ऐसे, तो वही तो चीज़ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ऑयलर्स और फर्मेट्स थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। दिस इज एंड हियर। मुझे ऐसा थोड़ा फील हो रहा है कि शायद आपको अब कुछ समझ आया होगा। मेरा यही कहना है कि आप जो भी चीज़ पढ़ो ना उसको फील करके पढ़ो, तभी आपको समझ आएगा। कभी किसी चीज़ को मुझे प्रेशर मत पढ़ो कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लिया। अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस कि आउटसाइड वर्ल्ड में इसका क्या यूज है। इफ़ वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, वो चीज़ हमारे को यूज की भी नहीं है, ठीक है। जस्ट ट्राई टू रिलेट इट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि हम क्यों पढ़ते हैं, पढ़ते इसीलिए ना इसका कहीं ना कहीं यूज आए। इनफैक्ट बीइंग ए मैथमेटिशियन आई जस्ट बिलीव कि मैं चीज़ों को एक्सटर्नली कनेक्ट करता हूँ, सो यू डू द सेम। और मुझे लगता है कि आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कम इन द नेक्स्ट वीडियो, विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद दिस फ्रॉम 5th of October। रेगुलरली वीडियोज आएंगे, सो आपको वहाँ पे बने रहने के लिए जस्ट if you like it give me a thumbs up there below in the description box or in the comment box, write a comment। हाँ, I am very open to suggestions and comments, very open to that। आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, मेरे में लगता है कि इम्प्रूव की, आई विल इम्प्रूव, डोंट वरी। सो आप वहाँ पे डाल दीजिए।
आपको अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट्स भी डाल दीजिए, बुरा लगा तो बुरे भी डाल दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मुझे अच्छा जानने को मिलता कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो और अच्छा करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड अगर आपको लगता है इफेक्टिव है, आपके दोस्त भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो, है ना। थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट।